श्री गोकुल नाथ की
Acharyan Pranamami Murmur Yatnungratu Jantum Sarva Dukadiko Bhavet Taram Samanta
वंदे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषं लीलाक्षराब्धिशाय नमः। लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्य त्रिभिस्तथा हृदय विराजते योऽसौ पंचधारादेव श्री गोकुलनाथ की जय। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टि सपथरक्षिता जनिता तद्विवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतिर्नित्यं यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नमः। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पत्सन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नमः। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् देवकी स्वतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। શ્રી વિઠ્ઠલરાય બાવાશ્રી, પૂજ્ય વહુજી અને પૂજ્ય શ્રી ગોકુલનાથ બાવાશ્રી, આપ શ્રીના ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ અને અહીં ઉપસ્થિત સર્વ વૈષ્ણવોને જય જય શ્રી ગોકલેશ। આજનો શુભ દિવસ કારતક વદ હરિ દિવસ એટલે શ્રી ગોકુલ નરેશ કનૈયા પ્રભુનો જન્મોત્સવ આજે આવે છે। આપણા ચતુર્થ ગૃહમાં કોઈ પણ ઉત્સવ, કોઈ પણ જન્મોત્સવ મિતિ પ્રમાણે ઉજવવામાં આવે છે। તારીખ પ્રમાણે કોઈ પણ ઉત્સવ ઉજવાતો નથી, પણ આજનો શુભ દિવસ શ્રી ગોકુલ નરેશ કનૈયા પ્રભુનો જન્મોત્સવ અને આજે તારીખ 15મી નવેમ્બર શ્રી ચતુર્પીઠાધીશ્વર ગુરુદેવનો શ્રી વિઠ્ઠલરાયજીનો જન્મ દિવસ આજે આવે છે। અને તેઓ અત્રે આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે। સુરત મુકામે કનૈયા પ્રભુનો જન્મોત્સવ સૌ પ્રથમ ઉજવી રહ્યા છીએ અને દર વર્ષે સુરત મુકામે તે ઉત્સવ શ્રી ચતુર્પીઠાધીશ્વર શ્રી વિઠ્ઠલરાયજીના ઉપસ્થિતમાં ઉજવાય તેવા સુરતના ચતુર્થ ગૃહના વૈષ્ણવ આશ રાખી રહ્યા છીએ કી જય। ચતુર્પીઠાધીશ્વર શ્રી લક્ષ્મણલાલજી મહારાજ 48 વયની યુવા અવસ્થામાં નિત્યલીલામાં પધારી જતા આપ શ્રીના વહુજી શ્રી ચંદ્રાવલીજી માજી મહારાજે ચતુર્થ ગૃહની જવાબદારી અનન્ય ભક્તિભાવથી તથા ખૂબ જ કુનેહપૂર્વક સંભાળી હતી। શ્રી ચંદ્રાવલીજી માજી મહારાજે મથુરાના શ્રી રમણલાલજી મહારાજના લાલ શ્રી કનૈયા પ્રભુને શ્રીમદ ગોકુલ ચતુર્થ ગૃહે પધરાવ્યા હતા। જેવી રીતે પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય મથુરામાં શ્રાવણ વદ આઠમની મધ્યરાત્રિએ થયું હતું, તેવી રીતે શ્રી કનૈયા પ્રભુનું પ્રાગટ્ય પણ વિક્રમ સંવત 1925ના ગુર્જર શ્રાવણ વદ આઠમની મધ્યરાત્રિએ મથુરામાં ગોસ્વામી શ્રી રમણલાલજી મહારાજ તથા શ્રી રાની વહુજીના ગૃહે થયું હતું। જેવી રીતે પ્રાગટ્ય પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુપ્ત રીતે મથુરાથી શ્રીમદ ગોકુલ મધ્યરાત્રિએ પધાર્યા હતા, તેવી રીતે બાલ સ્વરૂપ શ્રી કનૈયા પ્રભુને પણ ગોકુલના શ્રી લક્ષ્મણલાલજીના વહુજી શ્રી ચંદ્રાવલીજી માજી મહારાજના આ વિક્રમ સંવત 1926ના ગુર્જર કારતક હરિદિવસના શુભ દિને ગુપ્ત રીતથી મથુરાથી શ્રીમદ ગોકુલમાં પધરાવી લાવ્યા હતા। આથી કારતક વદ હરિ દિવસના શુભ મંગળમય દિવસ શ્રી કનૈયા પ્રભુના જન્મોત્સવ રૂપે ચતુર્થ ગૃહની અનન્ય શક્તિ સેવક સૃષ્ટિમાં અતિ આનંદપૂર્વક અને ભક્તિભાવ સહિત અધ્યાપી પર્યત મનાવાય છે। શ્રી ચંદ્રાવલીજી માજી મહારાજે શ્રી કનૈયા પ્રભુનું બીજું નામ શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુ રાખ્યું હતું, પરંતુ આપશ્રીના અનન્ય ભક્તજનો તો આપશ્રીને શ્રી કનૈયા પ્રભુના નામથી જ સંબોધે છે અને ભજે છે। શ્રી કનૈયા પ્રભુએ
ભૂતળ ઉપરની સ્વ અવતાર લીલા સમયે સ્વમુખે લખાયેલા વચનામૃતોમાં આવતા આપશ્રીના અવતારકાલીન લીલાના દૈવ્ય પ્રસંગો, વચનો, આજ્ઞાઓ વગેરેને સ્વરૂપ યોગ્યના નિર્ધારિત વચનો રૂપે વાંચવા અને માનવા. એક સમય આપ શ્રી એટલે શ્રી કનૈયા પ્રભુ પ્રસન્નતામાં બિરાજતા હતા. ત્યારે એક વૈષ્ણવે વિનંતી કરી, રાજ, અમે યમુના પાન કરીએ છીએ, શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરીએ છીએ અને આપ શ્રીના વચનામૃતનું પાન કરીએ છીએ, પરંતુ ભગવદ રસનો અનુભવ થતો નથી. તેનું કારણ કૃપા કરીને સમજાવો. ત્યારે આપ શ્રીએ આજ્ઞા કરી, આ વાત કહેવાય તેવી નથી, પરંતુ પૂછો છો અને તમારી ઈચ્છા છે તેથી કહું છું. પુષ્ટિ માર્ગમાં વિશ્વાસ ફલરૂપ છે. જ્યાં સુધી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીના વચનોમાં દ્રઢ વિશ્વાસ ન હોય ત્યાં સુધી આ વાત દુર્લભ જ છે. જ્યારે તેમની કૃપા હોય, મહાનુભાવી ભક્તોના સત્સંગ હોય અને તે કહે તે સત્ય માને, ત્યારે શ્રી પ્રભુ જલ્દી અનુભવ જણાવે. આથી यालिए श्री महाप्रभु आज्ञा करें, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स. આથી મહાનુભાવ ભક્તો ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવાથી સકલ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આપ શ્રીના ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ. बहुत बढ़िया तैयारी तैयार. શ્રી ગુરુદેવ શ્રી વિઠ્ઠલરાયજી બાવાશ્રી પૂજ્ય મૈયાજી શ્રી ગોકુળનાથ બાવાશ્રી આપ શ્રી ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. સર્વ વૈષ્ણવના જય શ્રી ગોકુલેશ. શ્રી કનૈયા પ્રભુના વચનામૃત નંબર 9. એક સમય મધ્યપ્રદેશમાં આપ શ્રી ગંગા દશમી ઉપર ત્યાંના શેઠની ધર્મશાળામાં બિરાજ્યા હતા. ત્યાં બે વૈષ્ણવ ગુજરાતથી આવ્યા. આ બંને 4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા. ત્યારે આપ શ્રી આજ્ઞા કરી કે પ્રસાદ લેવા બેસી જાઓ. ત્યારે એક સ્વરૂપ નૈષ્ઠિક વૈષ્ણવને વિનંતી કરી, જે રાજ પહેલાં આપ શ્રી આરોગો, પછી અમે પ્રસાદ લઈશું. ત્યારે આપ શ્રી વૈષ્ણવ સુખ વિચારીને આજ્ઞા કરી, વૈષ્ણવોએ શ્રી ગુરુ આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. આ સાંભળી વૈષ્ણવે વિચારમાં પડી ગયા. ત્યારે આપ શ્રી આજ્ઞા કરી કે શ્રી પ્રભુએ તો શ્રી ગિરિરાજ ઉઠાવ્યો, તમારાથી પથ્થર પણ ઉપરાશે નહીં. આજ્ઞા પાલન કરવું એ જ સેવકનો ધર્મ છે અને પ્રભુનું સુખ વિચારવું એ દાસ ધર્મ છે. આમ આજ્ઞા કરી સમજાવી તથા વૈષ્ણવોને ભૂખ્યા જણાવી આપ શ્રી પ્રસાદ લેવા માટે બેસી જાઓ. જય ગોકુલ કી જય. बहुत बढ़िया. करें आगे. अच्छा भी है. ठीक ठीक. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી વિઠ્ઠલરાયજી, પૂજ્ય મૈયાજી અને ચિરંજીવી ગોકુલનાથ બાવાશ્રી આપ શ્રીના ચરણ કમલમાં દંડવત પ્રણામ. સર્વે વૈષ્ણવને જય જય શ્રી ગોકુલેશ. એક સમય શ્રી ગોકુલમાં નિજ મંદિરના નામઘરમાં આપ શ્રી બિરાજમાન હતા. તે સમયે શ્રીનાથજીના ચતુર્થ નિધિના દર્શન ખુલ્યા. તે સમયે આપ શ્રી સન્મુખ વૈષ્ણવ સમાજ બેઠો હતો. તે સમયે ઘણા વૈષ્ણવો દર્શન કરવા ગયા, પરંતુ 2-3 સ્વરૂપાસક્ત વૈષ્ણવો બેસી રહ્યા. ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ચાલો દર્શન ખુલ્યા છે. ત્યારે આ વૈષ્ણવોએ કહ્યું કે જેના દર્શન ખુલ્યા છે તે તો અહીં જ બિરાજમાન છે. આ સાંભળીને આ વૈષ્ણવોનો હૃદયનો ભાવ જાણી આપશ્રી પ્રસન્ન થયા. આવા સ્વરૂપનિષ્ઠ ભક્તોની આપશ્રીએ પ્રશંસા કરી હતી. શ્રી ગુરુજીની કૃપા વિના આવો ભાવ સ્ફુરે નહીં અને અન્યને સમજાય પણ નહીં. देखो, यह प्रसंग में एक बात आई दर्शन की. ठीक है, तो इतिहास को ध्यान में रखते भाई कहीं कोई को संदेह होए यहाँ कि यहाँ भी दर्शन की बात करिए, वो कैसे दर्शन की बात करिए, कौन के दर्शन की बात करिए, तो ये स्पष्ट अपन को ख्याल रखना चाहिए कि श्री महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ प्रभुचरण, उनने एक ग्रंथ की रचना करी है, साधन दीपिका
कई लोगों ने वाकई बारे में सुनियो भी होएगो, और जिनको ख्याल नहीं है तो उनको ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। वो साधन दीपिका जो ग्रंथ है वहां में वैष्णव जीवन प्रणाली, पूरी जीवनचर्या कैसे आचरण करनी चाहिए वाको एक संकेत दियो है। वहां दर्शन के लिए श्री गोपीनाथ दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। तो स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत आज्ञा करिए कि भगवत दर्शन, श्री ठाकुर जी के दर्शन कौन को कराने चाहिए। तो वहां कह रहे हैं कि स्वीयान जो अपने हैं, जो अपने परिवार के हैं, जो अपने आत्मीय हैं, और भक्तान तो जो भक्त हैं और स्वकीय हैं, आत्मीय हैं, उनको दर्शन कराने की बात कही है। यदि कहीं कोई उपस्थित हो जाए तो सबन को अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराने चाहिए, क्योंकि सेवा अपने यहाँ गुप्त बताई गई है। तो स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत ये बात कही गई है। तो जो स्वकीय हैं, जो अपने आत्मीय हैं, जो अपने परिवार के हैं, और साथ में जो जिनके अंदर भक्ति भाव है, ऐसे ही जो जीव हैं, ऐसे ही जो वैष्णव हैं, उनको दर्शन कराने चाहिए। क्योंकि यहाँ दर्शन की बात में आई ना कि निज मंदिर में यहाँ दर्शन को हिला पड़े और आज्ञा करी कि जिनके दर्शन करने हो तो यहाँ विराज रहे हो, वहां कौन के दर्शन करने के लिए बात कर रहे हो। तो ये यहाँ पे अपने यहाँ आचार्य ग्रह की परंपरा है, और आचार्य ग्रह की परंपरा के कारण आचार्य दर्शन की यहाँ बात अवधेय है, वो यहाँ पे ध्यान में लेनी चाहिए। आयो बात ख्याल में? क्योंकि इन वचनामृत क्या है, तत्कालीन समय में, तत्त समय में जो जा समय भय होए, वहां समय की जो देश काल परिस्थिति होए, वह समय को जो मानस है वाकू ध्यान में रखते भाई ये सारे वचनामृत किए गए हुए। तो करके आज अपन को इनको समझने हुए तो सबसे पहले अपन को श्री महाप्रभु के सिद्धांत ध्यान में लेने जरूरी है। और आपको ख्याल होएगो तो टिप्पणी में मैंने यह बात को उल्लेख किया है। टिप्पणी में वहां पे मैंने एक नोंद भी दी है। बेटा है आपके पास टिप्पणियां? निकालो तो। सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण के वचनामृतन में कई ऐसे वचनामृत हैं जो तत्कालीन, वो समय की तत्कालीन देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके आप श्री ने करे हैं। तो ये तो दादाजी की बात करी अपन ने। वाकई बाद जो जितने भी जो परवर्ती जो आचार्य पधारे हैं, उनने सबने अपने अपने समय में अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार श्री महाप्रभु के सिद्धांतन को ध्यान में रखते हुए और सेवक सृष्टि को मार्ग को बोध उपदेश दियो है करके। कई ऐसे वचनामृत हैं जो तत्कालीन देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके आप श्री ने करे हैं। ये नोंद यालिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज और थोड़े 2-3 वचनामृत में अपन वाको अवगाहन करेंगे, पान करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। वर्तमान देश काल में ये सभी वचनामृत विवेक रखते भय समझने चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 400 वर्ष पूर्व क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है, ये ध्यान में लेना नितांत आवश्यक है। इन सभी वचनामृतन को अर्थ घटन श्री महाप्रभु के सिद्धांतन के आधार पे और उन सिद्धांतन को अनुसरण करवे वाली मार्गीय परंपरा, इतिहास और प्रणाली के अनुसार कियो जाए है, ये बात अति सूक्ष्मता से ध्यान में ले लेनी चाहिए। आगे और ख्याल में क्या चीज कही? श्री महाप्रभु के सिद्धांत को अनुसरण करते हुए मार्ग की परंपरा, इतिहास और प्रणाली का 3 बातें कही हैं। इनको ध्यान में लेकर के ही कोई भी आचार्य महानुभाव हैं, उनके वाणी को, उनके वचनामृत को अर्थघटन करना चाहिए। आज को मैं आ गया, मैंने जो कुछ कह दियो, कल को उठ करके ये आए, इनने कुछ कह दियो, परसों कोई और आयो, कोई वाने कह दियो, तो जो सब कहते चले जा रहे हैं उनको अपन सुनते चले जा रहे हैं। अपन को ये ख्याल में ही नहीं है कि भाई कौन बोल रहा है, कहीं सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, या चीज को अनुसंधान अपन को नहीं है। तो ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। ये क्यों याद समय? क्योंकि आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है
कि बिना सोचे समझे जो आ रहे हो वो, मैं तो हमेशा सब लोगों को बोलूं कि सबसे पहली चीज, जितने भी पुष्टि मार्गीय तथा कथित जितने ये ग्रुप चल रहे हैं वहां में से एग्जिट हो जाओ। अपने को चाहिए ही नहीं है सब चीज। पुष्टि मार्गीय जितने भी ये ग्रुप चल रहे हैं ये आपको कोई सही जिज्ञासा, सही आपको ज्ञान दे नहीं सके। ये सब चलती फिरती जो बातें हैं बस वही सब चीज देंगे। तो पहली चीज, अगर सही मार्ग को बोध प्राप्त करना है, श्री महाप्रभु को मार्ग, तो एटलीस्ट अपने चतुर्थ द्वार में मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं, गोकुलनाथ जी के घर में जो सेवक वैष्णव हैं उनको अनाप शनाप जितने भी ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप चल रहे हैं वहां में से निकाल दो, आपको डिलीट कर दो और एग्जिट हो जाओ, सुखी हो जाओगे। क्योंकि वैसा भी आप पढ़ो तो हो नहीं हो, वो फॉरवर्ड करने के लिए ही हो, वो आए हो એટલે अपन ने 10 जन इनको फॉरवर्ड कर दिया, वो 10 ने जो है बाकी 100 लोगों को फॉरवर्ड किया, यही हो तो है। तो केवल एक ये अपने ऊर्जा समय शक्ति को अपव्यय है, वो क्यों करना। धर्माचरण अपनी आवश्यकता है कि नहीं ये पहले समझनी चाहिए। हम धर्माचरण करना चाह रहे हैं, अपनो हेतु क्या है, अपनो प्रयोजन क्या है, ये स्पष्ट होना जरूरी है। जैसे हम यहां एकत्रित हुए, ये एकत्रित हुए या के पीछे कोई प्रयोजन है, कोई भी हेतु है, कोई भी प्रयोजन है मिलने को अपनो, वो सार्थक होना जरूरी है। हम सब मिले हैं कोई ना कोई प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, हमारे यहाँ कहावत है कि बिना प्रयोजन के एक मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करे। तो हम सब कोई ना कोई जो कार्य कर रहे हैं जीवन में, वाके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। यहाँ इकट्ठे हुए वाके पीछे भी कोई ना कोई प्रयोजन है। आप अपनो इतनो समय शक्ति ऊर्जा दे करके यहाँ एकत्रित हुए, मैं आयो, तो कोई भी, जैसे ये कोई कार्यक्रम है या दैनंदिन जीवन को कोई व्यवहार क्यों नहीं हुए, हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। और वो प्रयोजन अपन को सार्थक करना ही वो समय शक्ति ऊर्जा को सदव्यय है, वो को अपव्यय नहीं है। ये बात समझ, मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ, नहीं ख्याली हो तो बोलियो। अपन तो यहाँ जहाँ मिल गए, दादाजी के घर के दोनों पक्ष मिल गए, वो अपनो परिवार है। हम तो अपने परिवार में यहाँ बैठे हुए हैं, तो परिवार में कोई संकोच नहीं हुआ है, जो बात हो बहुत सहजता से अपन करें। तो प्रयोजन जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे ही धर्म की आवश्यकता है या नहीं, ये भी एक प्रश्न है अपने सामने, और वो अपन सबको वो प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जीवन के एक पड़ाव में आकर के ये बातें सही मुकाम पे अपने सामने उपस्थित हुए हैं। हर एक उम्र को तकाजा है, हर उम्र की एक मांग है, और वाक्य अनुसार जैसे जैसे जीवन में अपन आगे गति अपन करें, अपनी प्राथमिकताएं बदलती जाएं। जो आज से जब 20 वर्ष के हते तब अपनी प्राथमिकताएं कुछ और हती, आज 40 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में अपनी प्राथमिकताएं बदल गई, आज कुछ और खड़ी हैं। और आगे चल करके जब अपन 60-70 वर्ष के होंगे तब अपनी प्राथमिकताएं और बदलेंगी। तो जैसे जैसे अपन उम्र में अपन बढ़ते चले जाएं, वो प्राथमिकताएं अपनी और स्पष्ट होती चली जाएं करके। यहाँ ये बात बहुत ध्यान से अपन को समझनी है कि अगर हम धर्म को आचरण करना भी चाह रहे हैं तो वो धर्म को आचरण ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास अब समय बहुत कम है, और या कम समय में सब कुछ समेट लेना है, जो प्रयोजन से हम लोग यहाँ आए हैं। एक बहुत सुंदर सुभाषित है जो मैंने बचपन में पढ़े हो, तो अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतयेत। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतयेत। प्राज्ञः नाम विद्वान, विद्या विषये अर्थ विषयिणी अपि चिंता प्राज्ञः केन प्रकारेण करणीयः चिंतयेत। अजरा मरवत चिंतयेत। तो वो कैसे करेगो? अजर अमर वत, अजरा मरवत, अजर और अमर की तरह। अजर मतलब जहां जरा नहीं है, जरा यानी अवस्था, वृद्धावस्था। या लिए अजर और अमर कौन हैं? जो देवताएं हैं, उनको कभी न तो जो है वो अवस्था प्राप्त होवे और न वो कभी मरे।
यानी ये अमर कहे गए हैं, वो अजर कहे गए हैं, तो वो देवताएं हैं। तो यहाँ विद्वान लोग क्या कर रहे हैं, विद्वान कैसे होंगे, जिनको निरक्षीर विवेक हुए कि अजरा मरवत प्राज्ञ, जो विद्वान हैं, जिनको निरक्षीर को विवेक है, जिनको प्राथमिकताएं उनके जीवन में स्पष्ट हैं कि कौन सी वस्तु जो है वो ग्रहण करने जैसी है, कौन सी जो है वो है त्याज्य है, या के विवेक सु अपने जीवन में जो वो चलें, तो वो प्राज्ञ नाम विद्वान विद्याम और अर्थंच चिंतयेत। तो विद्या और अर्थ की प्राप्ति, द्रव्योपार्जन जीवन में करनो हो या विद्योपार्जन करनो हो, वो या दृष्टि सु करें कि हम तो अजर हैं, अमर हैं, हमको तो अब कोई जो है वो चिंता वाली बात ही नहीं है, टाइम ही टाइम है अपने पास, समय ही समय है, आराम सु करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्रहीत इव केशेषु, ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। परंतु ग्रहीत इव केशेषु, जैसे साक्षात यमराज ने, मृत्यु ने आपके केश पाश को, हम तो बच गए क्योंकि केश ही नहीं रहे तो ग्रहीत इव केशेषु, जैसे पहले अपन नहीं सीरियल में देखे, रामायण महाभारत सीरियल में सबन के लंबे लंबे बाल, रामानंद सागर की सीरियल पहले आती थी बचपन, सब लंबे लंबे बाल होते थे। એટલે एक सोच है कि भाई कोई भाग रहे हो तो पहले वाकई क्या हाथ में आयो, वाकई चोटी हाथ में आई। तो ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, जैसे मृत्यु ने आपके केश पाश को जकड़ ही लियो है, वाकई बिल्कुल आप वाकई पाश में बिल्कुल पकड़ में आ ही गए हो, और इट्स अबाउट टू स्ट्राइक। बस इतनो जो समय है कि आपके केश पाश वाके हाथ में आ गए और गर्दन पे वो तलवार बस सीधे, उतनो जो टाइम पीरियड रह गयो है आपके जीवन में, इतनो ही समय है, इतनो समय बाकी रह गयो, ये जान करके धर्मम आचरेत, वो धर्म को आचरण ऐसे करो। बाकी को जीवन में जो चीजें हैं वो विद्याम अर्चंत अजरामरवत, अजर और अमर होकर के, हमारे पास टाइम ही टाइम है यार, करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें शास्त्रकारन ने बताई हैं। तो अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थंच चिंतयेत, ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। तो प्रयोजन की बात होती है अपनी, घूम फिर करके फिर लौट करके आ जाएं। तो धर्म को आचरण भी हम क्यों करना चाह रहे हैं, कुछ आवश्यकता है कि नहीं, पहले खुद सोचो यार चीज को कि हम, हमारे जीवन में धर्म की हमको आचरण करने की आवश्यकता है, और यदि है तो फिर वाकई लिए सीरियसली गंभीरता से वो कैसे प्राप्त करना चाहिए, वाको आचरण कैसे करना चाहिए, वो भी समझना चाहिए। वो मंदिरन में भटकने से नहीं होएगा, वो तो श्री महाप्रभु की वाणी सु मार्ग बोध प्राप्त करके ही, क्योंकि हम पुष्टि मार्गीय हैं, क्योंकि हम वैष्णव हैं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, करके हमको जो कुछ भी कर्तव्य है हमारे लिए, वो श्री महाप्रभु ने जो अपने को कर्तव्य बताया है, वही माध्यम सु ही अपने जीवन को सार है, वही में अपनो प्रयोजन सार्थक हो रहे हो, अन्यथा नहीं होएगा वो। तो या चीज को समझते भय और श्री महाप्रभु की वाणी को पारायण करके सीरियसली अपने लिए करो, कोई और के लिए मत करो। धर्म अगर कल्याण कर सके तो वो स्वयं को ही कल्याण कर सके, आपको जीवात्मा जो है वाकु एक वाकी अनुकूल सदगति वाकु प्राप्त होगी, ये हेतु सु धर्म को आचरण की हो जाए। मेरे धर्म के आचरण करने सु इनको कोई लाभ नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं है, उनके या इनके करने सु मेरे को कोई लाभ नहीं है, मैं जो करूंगा वो मोकू लाभ प्राप्त होगा। याली अपने बड़े कह गए कि अंते यामति ही सा गति ही, अंत समय में सारे संसार सु, सब संसार के कोई कि भाई बद्धा ने छोकराओं ने बद्धा ने बोलावी लो, नहीं, ठीक है देख लो कर लो। और जब भी कभी ऐसा लगता है कि भाई बस अब इनको अब समय जो है भगवत चरणारविंद में जाने की अब इनको समय लग रहे हो, तब केवल अष्टाक्षर महा संकेत चलने दो, क्योंकि वाको अपन कब वो जीवात्मा को कब हितैषी बन पाएंगे। और अगर वह समय संसार में डाल दियो तो बात बिगड़ गई, फिर तो वो बहुबंधन की गति में जो है वो जन्म मरण जो है आवागमन में पड़ जाएगा वो जीवात्मा।